Ma'am, I have made you host. Yes, ma'am. Okay. So we were on which point, beta? मैम आपने बोला था कि वो जो चैप्टर 19 का एक्सरसाइज है ना उसमें जो लास्ट 14 और 15 क्वेश्चन है वो करवाओ। Yes, beta, right. Right. और आपने बोला नेक्स्ट सेशन में डाउट भी सॉल्व करोगे। Yes, beta, sure, sure. We'll continue from that. Before that, we have completed how many of those chapters for taste, beta? First, second chapter taste done, right? Yes, ma'am. Okay. What about third, fourth chapter? We have completed. Ma'am, we have done the fiber one, that is third, and the fourth is coal and petroleum, I guess. No. Ma'am, coal and petroleum is fifth. No, beta. Ma'am. I'm talking about this test, okay? Sunday test generally, you got only one paper till the date, right? For science, right, beta? So, how many chapters we have completed for the test? मैम एकदम ने वो मैम इलेक्ट्रॉन्स वाला कर लिया था। Electrons. चैप्टर नंबर 15 मैम जो था। Natural phenomenon. हाँ मैम वही सब। Yes, right. Okay, so this time what we can include, just give me a moment. 2 chapters will take, beta. Which chapter? We can take chapter number 3 and chapter number 2 was there, beta? Ma'am, microorganisms. Yes. 10 and 4. Ma'am, I think so. उसकी तो आपने ले ली है. हाँ Okay. मैम So वही। this time we are going to take chapter number 3. Why? Chapter number 3 and chapter number 17. Ma'am, chapter number 3 only. 3 only. 17? Yes, ma'am. See, if you want only one chapter, then we can go for chapter number 17. Okay. Ma'am, 17 में तो बहुत सारे topics हैं. No, beta. 17 is like only Yes, see. ma'am, क्योंकि Friday test है. मैम कुछ ही टॉपिक्स है जो मैम समझने लायक है मैम, मतलब कुछ ही में है जो उसमें ध्यान देना है, आपने भी बोला था। So we can take chapter number 17, right? So this time we are having chapter number 17. Okay. Don't worry, it's interesting and I know that you will do it much better, right? Than chapter number 3. Okay. See, you'll find out only planets, right? Constellation and other celestial objects. That's it. Done. Right? Nothing else, beta. Fine. Ma'am, in today was ma'am in my school was quiz ma'am and my team came second. For quiz. Ma'am, my team came second, ma'am. Okay, great. Good work. So that quiz was related to what, beta? Ma'am, related to stars, solar system, and celestial objects, some comets. Got it. Means, ma'am, ma'am, black holes, and the question that has been asked to the other team that they didn't answer, that which hole has been the theory that if we gone to the black hole, मतलब अगर हम black hole से जाते हैं तो एक साइंटिस्ट ने थियरी बनाई थी कि हम उससे बाहर आ जाते हैं, एक और गैलेक्सी होती है उसमें जाके बाहर आ जाते हैं, उसका आंसर आता है व्हाइट होल, लेकिन वो आंसर दे नहीं पाए, तो फिर हमने दे दिया उसका आंसर, हमने से टीम में से किसी एक ने दिया था। Fine, beta, fine. Okay. Great. Wonderful. Congratulations. Okay. Very good and keep it up, beta. Fine. But फर्स्ट जो है ना, yes. फर्स्ट मैम हमारा 8th 9th और 7th का कंपटीशन था, तो फर्स्ट तो मैम 9th स्टैंडर्ड आया, 9th स्टैंडर्ड में से टीम ए जो था वो फर्स्ट आया, और हम 8th स्टैंडर्ड में से जो 8 टीम का बी था वो सेकंड आया। Right. Okay, great. Good work. Right. But the thing is that extra reading is important always, for such kind of competitive, it's exam or any of the competition, you require that extra reading, apart from your syllabus, beta. Okay, so we'll continue with that one question. One question was that, beta, that radius of Jupiter is 11 times radius of Earth. Okay, we need to calculate how we are going to get that 1300 or more than that of Earth that we can accommodate inside Jupiter, right? So we are having that Earth atmosphere. I'll write down here in
Just give me a moment. I'm going to share my white screen here. Ma'am, can I show? Yes, beta, what? Ma'am, my PPT, I had to write that in chat you. Okay, just a second. If you want to share, definitely, but I can. Okay. So you are having what, beta? Which PPT you're talking about? Ma'am, which I made. I have made only half one, so can I show that? Or what, beta? But it was about what? Ma'am, constellations, any mistake is there or not? Okay, fine. But not right now. Let me complete this Okay, question ma'am. answer first, beta, okay? And then we can take. Definitely we can take that. So that's your PowerPoint presentation, beta? Yes, ma'am. Okay, great. So, okay, now all of you are aware about one thing, beta, right? And what is it? Volume. If we have to measure volume of any globe, so we are having that. Just consider this oblique as in form of what, beta? 4 divided by 3 pi r. Okay, just give me a moment. It's taking little bit time. मैम एरिया का फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर होता है ना. Yes, beta, but we are not searching area, no? We are searching here what, beta? Here volume. Volume is different. Area is different. Area is different. Volume is what, beta? If you have to define volume, area, mass, what are those things? Weight. Volume means that area you are occupying. Okay, that area you are occupying. Can we say that? Yes. Okay, right now I'm not going to search this pi, but I'm writing it just like this. Okay, give me a moment. Four divided by 3 pi r cube. Okay, that is the formula. This is our formula for what? 4 divided by 3 pi r cube. That is for volume of earth, right? Now what we are having, beta? We are having that value of pi. Okay, we are having that value of radius of the radius of what is given here? 11 times of radius. 11 of times. Jupiter, right? So 4 Yes, ma'am. divided by 3 pi r cube. What is it? 11. 11, ma'am. You can directly here write down radius of Jupiter is 11 r. Okay, 11 r means here we are going to put that value in place of this pi r cube. That will become 11 times radius r, right? Pi cube. We can write down now 4 divided by 3. This will remain same, right? Pi. Now put all those values there. So what is that? Cube of 11. What is it? Cube of 11 multiplied by 4. Yes, beta. Cube of 11 multiplied by 4. Square root of 11 what? Then cube of 11 is what, beta? Ma'am, 5,284. 5,000? 284. We are not discussing this directly. The value of pi is what, beta? I'm Value of 23 pi- point something. Yes. Can we write down it Ma'am, here? 21 by 7. Yes, beta. 4 multiplied by that value of pi multiplied by 11, 11. right? So what will be the value divided by 3? Okay, we are having another value here. If we have to find out the volume of Jupiter, okay, volume of this Jupiter is what, beta? Volume of Jupiter is, here we can write down 4 multiplied by. Okay, one more question I'm having. You are not using your calculators, right? Normal calculators for your calculation. No, ma'am. So you cannot use. No, ma'am. Okay, fine. Now you need to practice on this particular sum. Yes, beta. How you are going to do that? Come on, do it first. 11 cube root is what, beta?
11 cube root is what? Ma'am, Yes, beta. cube or cube root? Cube root. It's not cube, but मैं a वो cube. तो मैं वो को प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालता हूँ. Yes. And what is the value of pi? Just put that value of pi. Ma'am, pi की value है 22/7 और 3.14. 3.14. So you are going to multiply 2.2 to multiply by 3.14. Or if you want to keep it 22/7, then also you can do it. But this one will be a good idea. If you want to remove decimal, then also fine. So what could be the value? 4 multiplied by 2.22 multiplied by 3.14. What is that value? 27 point something. Now we are having volume. This volume is what, beta? Divided by 3 you are going to do. So, Right? 9.29. Once again, we are having another value. This is for volume of what, beta? This is for volume of... Okay, first of all, what do we need to find here? We need to find out. First portion is volume. that how many of Earth that we can, or globe, our planet, we can accommodate inside that Jupiter. So we need to search what, beta? Volume. Can we say we need to search volume? Volume of what? Yes, ma'am. Volume of Now we are Jupiter. having volume of Jupiter, that is volume of Jupiter, that is मैम मेरे तो 5284 आया. 5284 कहाँ से आया बेटा? 5000 मैम पूरा मैंने सॉल्व किया तो ऐसा ही आ रहा है. हाँ कैसे आया? बट मैम पहले तो मैंने 11 का क्यूब रूट निकाला. Okay, just a second. Let me clear this first. We need to find out volume. So volume of, we are going to write down first of all Jupiter. This is for Jupiter divided by volume of Earth, right? This is what we are searching for, right? Here we are going to write down, this is for volume of Earth. Now we need to find out what is our formula. 4 divided by 3 pi r cube. We are having that value of radius. It's not exact value. 11 times more than Earth, है ना? That is value. हमारे पास exact value नहीं है. So radius of Jupiter में हम क्या लिख सकते हैं? Radius of Jupiter is equal to, here जो भी वैल्यू हमेशा हमारे पास प्रेजेंट है उसको लिख लो आप. Radius of Jupiter that is equal to 11 r, यानी रेडियस. फाइन, ये हमारे पास है. और क्या है हमारे पास यहाँ पर? बस इतनी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, राइट? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसके लिए भी सेम ही होगा. वॉल्यूम अगर हमें अर्थ का भी करना है तो इसके लिए भी सेम ही होगा. 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई आर क्यूब. ठीक है, अब हमारे पास क्या है यहाँ पे वैल्यू? अर्थ के लिए कोई वैल्यू अवेलेबल है? नहीं, हमारे पास यही अवेलेबल है कि जुपिटर की जो वॉल्यूम है वो कितनी हो सकती है? अर्थ के 11 टाइम्स ज्यादा. ठीक है, तो वो वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखे 11 टाइम्स ज्यादा तो क्या हो जाएगा? अब उसका स्क्वायर रूट, इसका क्यूब रूट निकालो. क्यूब रूट विल बी 4. ये मल्टीप्लीकेशन, इट विल बिकम Ma'am, my network bandwidth is low, so can I keep my video off? Yes, beta. Who is that? Who is that, beta? I'm Drashti. Okay, okay, fine. Ma'am, Tanishka थी. Okay. Done, beta? मैम नहीं आ रहा आंसर. मैम सिंपल सा करना है हमें. क्या करना है? एक यहाँ पे वैल्यू रखनी है. व्हाट इज दैट वैल्यू? पहले तो क्यूब रूट बताओ मुझे 11 का कितना होगा अगर आप 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11. व्हाट इज दैट? मैम वो क्यूब होता है. मैम वो तो मैम क्यूब मैम रूट है. वो मैम क्यूब होता है, क्यूब रूट नहीं होता.
इट्स क्यूब मैम रूट क्यूब और बेटा, क्यूब रूट अलग होता है। क्यूब रूट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे क्यूब रूट है या क्यूब है पहले तो? मैम क्यूब है। मैम क्यूब रूट है ना। क्यूब रूट मतलब साग्निक 11 से छोटा होता है और साग्निक क्यूब बेटा, का मतलब 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। एग्जैक्टली हाँ मैम। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों करना है बेटा साग्निक? हाँ मैम। हाँ, कंफ्यूजन क्यों करना है यहाँ पे? मैम नो मैम, मैं ये पूछ रहा था कि मैम क्यूब आपकी रूट है आवाज कि क्यूब है? आपकी क्यूब आवाज है नहीं कि आ रही क्यूब बेटा। रूट है? सिंपल है। अगर अच्छा मुझे ये बताओ 11 मल्टीप्लाई मैम उसका आंसर मैम 1331 मैम आएगा। 1342 1341 आएगा। सिंपल है राइट। अगर आप 11 into 11 मैम into 11 1342 1342 आएगा बेटा या 1331 आएगा, सिंपल है। अगर आप यहाँ पे 1331 1331 आएगा, यस ठीक है मैम। वैल्यू। अब यस ये जो मैम। वैल्यू सेम है वो कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास यहाँ पे बचेगा क्या? 11331। तो ये 11331 है क्या? हम कंपेयर कर रहे थे दोनों को, क्या कंपेयर कर रहे थे? वॉल्यूम। किसकी वैल्यू हमारे वॉल्यूम। पास थी? किसी एक ही चीज की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास थी कि जुपिटर जो है उसकी रेडियस किससे ज्यादा है? अर्थ से। इसलिए अर्थ हमने से। क्या लिखा? वॉल्यूम ऑफ जुपिटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अब वो कितनी है? चलो एक काम करो, ये सब भूल जाओ कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ठीक है। सिर्फ ये 11 वाली वैल्यू याद रखो, 11R याद रखो। क्यों? क्योंकि जुपिटर की रेडियस 11 टाइम ज्यादा है अर्थ से, ठीक है। वो बड़ा है, वो तो एक नॉर्मल सी बात है। जुपिटर इज बिगर देन दी प्लेनेट अर्थ, है ना। तो 11R हो गया। तो इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ जुपिटर इज इक्वल टू 11 वॉल्यूम, मतलब मल्टीप्लीकेशन हो गया यहाँ पे 11 मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस वॉल्यूम ऑफ अर्थ। वैसे भी लिख सकते हैं, बट हमें क्या सर्च करना था? एक बार फिर से लिख के बताती हूँ मैं आपको। ये पूरा यहाँ पे भर चुका है। सिंपल, अगर मुझे लिखना हो वॉल्यूम ऑफ जुपिटर, राइट, इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं? हमारी वैल्यू 11 वो 11 टाइम्स ज्यादा है किससे? वॉल्यूम अर्थ से। अर्थ से। ऐसा भी लिख सकते हैं हम उसको, हाँ या ना? यस। अगर सेम चीज को हम वैल्यू के साथ लिखेंगे बेटा, इज इक्वल टू, जो 11 टाइम हो गया, हमें कितनी वैल्यू दी गई है यहाँ पे? 11 टाइम दी गई है, राइट। कितनी वैल्यू दी गई है हमें? 11 टाइम 11 टाइम। 11 टाइम्स, बट क्या दिया है? कौन से फॉर्म में दिया है? डायमीटर नहीं दिया है, रेडियस दी है। तो ये हो गया 11R। कैन वी राइट डाउन इन सच फॉर्म? यस। यानी रेडियस 11 टाइम्स ज्यादा है। बस यही किया। अब हमें सर्च क्या करना था? दोनों का कंपैरिजन हमें दिया हुआ था। सो हमने क्या किया? वॉल्यूम ऑफ जुपिटर डिवाइडेड बाय, अब ये डिवाइडेड बाय में सिर्फ ऑब्लिक से लिख रहे हो, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। कैन वी से दैट? वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो अगर इन दोनों को हम लिखेंगे टाइम्स ऑफ, तो फिर से हमारा 11R। अगर हम वॉल्यूम दोनों का यहाँ पे लिखे तो इनटू ब्रैकेट में लिखूंगी, यहाँ पे इनटू ब्रैकेट 4 डिवाइडेड बाय 3, बेटा बंद कर दो उसको, पाई R उसका क्यूब, ठीक है। ये थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्यूब, और नीचे भी सेम ही आएगा, ऑब्लिक करके मैं लिख लूंगी उसको, 4 डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो ये पूरा वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, 4 डिवाइडेड बाई 3, ये ऑब्लिक नीचे जाएगा, ठीक है। प्लीज कंसिडर कर लेना, अगर आप चाहो तो मैं फिर से इसको, जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ मोमेंट। ये कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सेम वैल्यू यहाँ पर भी आ जाएगी, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगी दोनों वैल्यू। 4 से 4 कट जाएगा और 3 से 3 भी कट जाएगा। हमारे पास फिर बच जाएगा इसकी रेडियस, यानी जो हमें उसका इसकी रेडियस था 11 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। तो वो हो जाएगा 1331। नॉर्मल सी है कैलकुलेशन? यस मैम। यस यस मैम, आ गया समझ में। बेटा आ हमने गया मैम। एक्सरसाइज खत्म कर ली थी। मैम मुझे एक डाउट है मैम। हाँ बोलो बोलो बेटा, चलो डाउट्स ले लेते हैं पहले। मैम मैंने आपको चैट बॉक्स पे 2 क्वेश्चन भी भेजे हैं मैम। After then, please explain question number 14 and 12. Can I show? Okay, me just give you a moment, बेटा। 12 and 14 आप पढ़ लो ना, कौन सा क्वेश्चन है बेटा? नंबर क्यों लिख रहे हो? बोल दो कौन सा मैं अभी पढ़ता हूँ। Yes ma'am. Why is the distance between star expressed in light years? What do you understand by the statement that a star is 8 light years away from the earth? ये क्वेश्चन से हमारे पास 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके ऊपर हमने काफी डिस्कशन किया था, राइट। एक तो पहला था कॉन्स्टेलेशन वाला कि इट्स अ पार्ट ऑफ द सनलाइट और सोलर सिस्टम और नॉट।
सेकेंड था लाइट ईयर को कैसे समझाया जाए, है ना, कि क्यों लाइट ईयर से ही करते हैं, राइट। तो आपका क्वेश्चन क्या है सागनी, कि उसको कैसे लिखे वो मैम मेरे समझ को नहीं आया। ये तो समझ में आ गया था मैम कि ना लाइट ईयर जो एक यूनिट है मेजर करने के लिए स्पेस में, बट मैम मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई थी कि ना आखिर मैम लाइट ईयर को हम लोग मेजर कैसे करेंगे, मतलब जैसे कि हाँ, इतना मीटर इज इक्वल टू इतना किलोमीटर, तो कितना ये मतलब वैसे समझ करेक्ट। कैसे एक समझे हमारे पास डिस्टेंस होना चाहिए, एक प्रॉपर डिस्टेंस या मेजरमेंट होना मैम, चाहिए, वही राइट। मैम, तो वही सबसे वही पहला वही। क्वेश्चन कि हम उसको मेजर कैसे करते हैं, राइट। मेजरमेंट मैंने अगर आपको बताया था, एकदम नॉर्मल सा उसका ओवरव्यू बताया था कि कैसे लाइट ईयर मेजर होता है। जैसे हम नाइट स्काई में, ठीक है, नाइट स्काई यानी जहां पे बाकी और कोई लाइट का डिस्टर्बेंस नहीं है, ऐसी जगह पे अगर हम टॉर्च सपोज ऑन करते हैं, है ना। आई नो कि वो बहुत ही सिली सी बात है कि इतने बड़े यूनिवर्स में वो लाइट नहीं ट्रैवल कर पाएगी, राइट। बट द थिंग इज दैट कि हम जो मेजर करते हैं वो तरीका भी कुछ ऐसा ही है। हम क्या करते हैं, यहाँ से कोई एक पॉइंट से लाइट को जब रिलीज करते हैं, वो लाइट जहां तक ट्रैवल करती है, ठीक है, वो ट्रैवलिंग को मेजर किया जाता है। अब वो जो है, आप बोल रहे हो कि पूरा प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज उतना कॉमन नहीं है जितना हम यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं, ठीक है। जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं जो एक्चुअल में लाइट ईयर्स में वहां पे नासा में, रशिया के किसी स्पेस स्टेशन या इंडिया के किसी इसरो या कहीं कोई भी जगह से ले लो, वो जो मेजरमेंट कैलकुलेशन करते हैं, राइट, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। बट हाँ, एक तरीका हमें पता है, यहाँ पे 8th स्टैंडर्ड में हम इतना ले सकते हैं कि अगर नाइट स्काई में स्पेसिफिकली ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब आप नाइट स्काई की बात करो तब आजू बाजू में और कोई सिटी लाइट्स या बाकी लाइट्स का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर उस टाइम पे आप कोई एक टॉर्च को ऑन करते हो और जो आप उसका एक रे देखते हो, राइट, रे जो हमें लाइट का दिखता है और वो ट्रैवल करता है काफी डिस्टेंस तक, यही लाइट ईयर का तरीका है मेजर करने का, जो हम यूज करते कहाँ पे, जब हम डिस्टेंस मेजर कर रहे होते हैं, फाइन, किसके बीच का, प्लैनेट्स के बीच का। अब आपको लगेगा कि मैम टॉर्च तो बहुत ही छोटा यूनिट है, मैम यस बेटा। मैम जैसे कि है ना, सपोज किसी साइंटिस्ट ने बोला कि सन से लेकर इस दूसरे स्टार तक की जो मतलब डिस्टेंस है वो 5 लाइट ईयर्स दूर है, तो मैं हम कैसे समझे मतलब कि 5 लाइट ईयर्स मतलब कितना, ये मैं अच्छा ओके, पूछना चाहता ये हूँ। अच्छा, हाँ, एक और चीज इसके लिए, अच्छा याद दिलाया। 5 लाइट ईयर यानी कैसा, हमारे लिए किलोमीटर यानी बेटा एक कुछ डिस्टेंस आप कवर करोगे तो यस किलोमीटर मैम, खत्म हो गया, है ना। 1000 बट मीटर लाइट हुआ। ईयर का मतलब होता है कई साल, ठीक है, लाइट ईयर का मतलब होता है कई साल, राइट। तो यहाँ पर एक लाइट ईयर के मुताबिक भी वो डिवीजन कैसा होगा, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा यानी क्या, वो ऐसा नहीं है कि 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर या माइल्स भी हमारे काउंटिंग में है, राइट। कैन वी से दैट कि माइल्स भी हम काउंट कर सकते हैं पूरे के पूरे। बट अगर यस हम मैम, लाइट ईयर की बात करें तो उसके मेजरमेंट के लिए हमें, आपको क्या लगता है कि लाइट ईयर कैसे मेजर होता होगा, मैं आपने अभी बोला ना मतलब टॉर्च कोई भी से हम टूल्स लोग के करते साथ। हैं। टॉर्च वो मैंने एक एग्जांपल दिया, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूंगी, राइट, अच्छा आपने आबू वाला एक माउंट आबू है, राइट, माउंट आबू राजस्थान और उसके बॉर्डर पे माउंट आबू है, सब हम लोग सब विजिट करते हैं, राइट। वहां पे अगर आपने देखा होगा वो गुरु शिखर पे एक रडार है पूरी सेलेस्टियल Yes, ऑब्जेक्ट ma'am. को ऑब्जर्व करने के लिए, Yes, अगर पता ma'am. हो तो बेटा, है ना। तो एक्चुअल में है क्या, वो रडार रात को ओपन हो जाती है और वहां पर जो टेलीस्कोप है या ये लाइट ईयर मेजरमेंट, इट्स स्टिल कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। बट वैसा नाइट स्काई और ऐसा स्पॉट चूज किया जाता है जहां पर समझ लो कि अहमदाबाद के नजदीक में हमने अगर ये रडार रखी होती तो कुछ होता बेटा, क्या नो हम मैम, अच्छे से नाइट स्काई को स्टडी कर पाते, No, ma'am. No, ma'am. बिल्कुल नहीं कर पाते, राइट। क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे विजन कैसा है, पॉल्यूशन पॉल्यूशन मैम, ज्यादा है ना, पॉल्यूशन है स्काई। और सिटी लाइट्स भी बहुत ही ज्यादा है ना। तो उस टाइम पे अगर हम मेजरमेंट यहाँ पे अहमदाबाद के नजदीक में रखते तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए वहां पे माउंट आबू पे रखा है, ठीक है, एक ऐसे स्पॉट पे जहाँ पे चांसेस ज्यादा है विजिबिलिटी का, विजिबिलिटी ज्यादा है। बेटा प्लीज म्यूट कर दो। बेटा बीच में आप क्यों अनम्यूट कर रहे हो अपने आप को, वो कौन था बेटा, आपके बैकग्राउंड से बहुत ही ज्यादा आवाज आती है। मैम सॉरी, मैं भूल गई थी म्यूट करना।
हाँ ठीक है बेटा। ओके तो अगर अभी मैम। हम बताया जाए, सागनिक आपने एक क्वेश्चन पूछा कि हाँ, 1 मैम। किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच माइल्स और 1 kg इज इक्वल टू हाउ मच दैट, हाउ मेनी ऑफ दैट ग्राम्स, राइट? या ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो या मीटर को सेंटीमीटर में, तो वैसे ही अगर हमें कन्वर्ट करना हो लाइट ईयर को या फिर लाइट जो ट्रेवल करती है उसको, तो इसका कन्वर्जन कुछ मिलियन और ट्रिलियन में जाएगा। क्यों बेटा? क्योंकि हमारे जितने भी मेजरमेंट है उसके आगे बहुत ही छोटे पड़ जाएंगे, है ना? आपने देखा कि हमने लाइट का ट्रैवल या डिस्टेंस, है ना, वो भी मिलियन बिलियन और ट्रिलियंस में ही देखा है, क्योंकि जितने भी मेजरमेंट है ये सारे यूनिवर्स के सामने हमारा प्लेनेट अर्थ जो है वो बहुत ही छोटा साबित होगा। कैन वी से दैट? यस मैम। आया ना? Yes, ma'am. मैम उसको अगर किलोमीटर्स या माइल्स से लाइट ईयर में कन्वर्ट करने जाएंगे तो वो बहुत ही मिलियन और ट्रिलियंस में चला जाएगा। बिलियन। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि ट्रिलियंस तक जा सकता है ना? 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू व्हाट इज लाइट ईयर, राइट? तो अगर हम उसको कन्वर्ट करने बैठेंगे किलोमीटर्स में कि कितने किलोमीटर, हाँ डेफिनेटली हम कन्वर्ट कर सकते हैं यूनिट को। ठीक है, वो यूनिट को हम डेफिनेटली कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कन्वर्ट किया जा सकता है। कन्वर्ट किया जा सकता है, बिल्कुल कन्वर्ट किया जा सकता है। साइंटिस्ट बैठे हैं वहां पे किस चीज के लिए, है ना? हम क्यों बोलते हैं कि ये रॉकेट साइंस नहीं है? रॉकेट साइंस तब नहीं होता जब वो कोई नॉर्मल साइंस जो फिजिक्स अभी अभी सीख रहा हो वो नहीं कर पाएगा, बट कौन कर पाएगा उसे? जिसने सीख लिया। जिसने सीख लिया और उसकी पीएचडी कर ली। पीएचडी कर लियो। अच्छा ओके, 1 लाइट ईयर को अगर कैलकुलेशन लिया जाए तो वो कितने माइल्स हो गए? वो अराउंड 6 और 6 पॉइंट समथिंग मिलियन, या फिर बोल सकते हो मिलियन नहीं ट्रिलियन माइल्स हो गए। ठीक है, 6 ट्रिलियन माइल्स या फिर 7 to 9 ट्रिलियन। हाँ बोलो बेटा। मैम अगर हम बोले कि है ना, जैसे कि इधर बोला है 8 लाइट ईयर्स, तो मैम 8 लाइट ईयर्स कितना होगा मैम? अच्छा अगर वो तो 1 लाइट ट्रिलियंस में जाएगा ना? अच्छा 1 लाइट ईयर अगर 6 या 6 से ज्यादा ट्रिलियन हो रहा है तो आप सोच लो कि अगर 5 है 8 है तो कितना होगा? मल्टीप्लाई 6 या 6 से ज्यादा वो तो जो 16 तक जाएगा, 16 हाँ, पॉइंट आराम से ट्रिलियन जाएगा तक बेटा। जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि नॉर्मली ये डिस्टेंस बहुत ही कम है क्या? आपने No, पढ़ा ma'am, होगा, ज्यादा ही आप है। पढ़ोगे, एक मिनट, आप पढ़ोगे जब जेनेटिक्स हम स्टडी करेंगे, हमारे अंदर जो डीएनए है ना उसका पता है कि मेजरमेंट कितना है? हम चांद पे जाके वापस आ जाए उतना बड़ा डीएनए होता है हमारे बॉडी में। कैन यू इमेजिन बेटा? तो ये सारे डिस्टेंस हमें जो छोटे छोटे लगते हैं वो एक्चुअल में छोटे है नहीं, हमारे मेजरमेंट्स वहां पे छोटे पड़ जाएंगे। इसलिए हमारे पास सबसे बड़ा मेजरमेंट कौन सा है? लाइट ईयर। लाइट ईयर यानी वो लाइट को ट्रैवल करती है और वहां पे किसी भी प्लेनेट के सरफेस पे पहुंचने तक हमें बहुत सालों तक इंतजार करना पड़ेगा, है ना? वो डिस्टेंस। फाइन, इज इट क्लियर? अब एक Yes, सेकेंड ma'am. क्वेश्चन बताना था बेटा, जो हम कॉन्स्टेलेशन और ग्रुप ऑफ स्टार के लिए बहुत डिस्कशन किया था, है ना? अगर वहां पे नेचुरल सैटेलाइट मेंशन नहीं है या सैटेलाइट मेंशन नेचुरल या आर्टिफिशियल है तो उस केस में यहाँ पे आंसर हमारा, हमने बताया था कि सैटेलाइट जाना चाहिए, है ना? यस मैम, आपने बोला था। बट अगर वो नेचुरल है तब तो वो भी एक पार्ट है हमारे सोलर सिस्टम का, ये भी हमने डिस्कस लेकिन किया। आर्टिफिशियल, अगर नेचुरल है तब तो पार्ट हुआ ना, आर्टिफिशियल है तब सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, बट नेचुरल अगर कंसिडर करें हम नेचुरल, हाँ या ना? तो हमारे मैम। दो आंसर्स यहाँ पे ऐसे है, 2 से भी ज्यादा। एक्चुअली वो कंफ्यूजन कभी होना ही नहीं चाहिए था क्योंकि हमारे पास उसकी डेफिनेशन बहुत ही क्लियर फॉर्म में है। और वो डेफिनेशन क्या है ये मैंने बोला था कि फिर से हम डिस्कस करेंगे बेटा, याद है? कॉन्स्टेलेशन वाला पूरा। क्योंकि आप देखोगे कि मैंने देखा है 2 स्कूल्स में या आपका जो भी एक मटेरियल होता है और स्कूल, ठीक है, वहां पे ये आंसर वेरी करता है, बट एक्चुअल आंसर इसमें जाएगा कौन सा? अभी भी आज भी कौन बता सकता है मुझे? पहले तो डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे फिर से। सोलर सिस्टम की डेफिनेशन Ma'am, celestial bodies that revolves around sun is known as solar करेक्ट। system. और उसी डेफिनेशन के मुताबिक कौन वहां पे रिवॉल्व नहीं करता? Ma'am, satellite. कॉन्स्टेलेशन, कॉन्स्टेलेशन है ना? मैंने कल कॉन्स्टेलेशन बोला था। यस बेटा, मुझे याद है कल किसने क्या बोला था, कल नहीं
एक दिन पहले, ठीक है, और उस टाइम पे हमने क्या डिस्कस किया था, ये सारे आंसर्स। बट ये क्वेरी फिर से आई है, सो वी आर डिस्कसिंग वंस अगेन। सैटेलाइट अगर आर्टिफिशियल मेंशन है तो वो आंसर जाएगा, आर्टिफिशियल मेंशन नहीं है तो हम कॉन्स्टिलेशन ही जाने देंगे। इवन द कॉन्स्टिलेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर सिस्टम, बट वी विल जस्ट राइट डाउन डिपेंडिंग अपॉन दिस डेफिनेशन। कौन सी डेफिनेशन है? if it's revolving around the sun Around or the our sun center portion, तो constellation is is called not going solar to move, system. because constellation का मतलब है ग्रुप ऑफ स्टार, और स्टार का Star. मतलब ही यही है कि वो भी सन की वो तरह moon एक भी स्टार नहीं ही है, राइट? सो Yes, ma'am. दैट केस विल कंसिडर कॉन्स्टिलेशन, बट जनरली आपको सैटेलाइट आर्टिफिशियल नहीं मिलेगा, यही आपको आंसर में 4 ऑप्शंस मिलेंगे, तो कॉन्स्टिलेशन ही आंसर रखना। फाइन मैम यस बेटा। मैम अगर हमको एग्जाम में पूछे कि है ना तुम बताओ कि ना तुम क्या मतलब ऐसे क्या समझते हो कि ना इतने लाइट ईयर्स मतलब क्या, तो मैम हम एग्जैक्टली क्या आंसर लिख सकते हैं एग्जाम में? एग्जैक्टली आंसर बताया ना बेटा, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 6 या 6 से ज्यादा ट्रिलियन माइल्स लिख सकते हो आप, ठीक है। ट्रिलियन ये एग्जाम में पहले तो आएगा नहीं, ठीक है, ट्रिलियन माइल्स वाला एग्जाम में, बट 6 ट्रिलियन क्योंकि यहाँ पे मैम को भी पूछा है ना। वो वैल्यू नोन नहीं होगी। वैल्यू नोन नहीं होगी, और ये वैल्यू भी कैसे करेगी बेटा, इट्स गोइंग टू वेरी, है ना। ये आपको एक स्पेसिफिक वर्ड या स्पेसिफिक वैल्यू जो मैंने अभी एक नंबर बताया, वो जस्ट बिकॉज यू आर हैविंग दैट क्यूरियोसिटी, है ना, तो आपको पता चलेगा कि अगर मुझे इसे माइल्स में या किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूं, राइट? मैम वो तो मैंने इसलिए पूछा कि वो क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 2 में दिया हुआ था। क्वेश्चन शुड अराइज इन योर माइंड, है ना, क्वेश्चन शुड अराइज बेटा। फाइन, अब कौन से क्वेश्चन से बाकी ma'am. हमारा सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे यहाँ पे, तो हमें नया Yes, चैप्टर ma'am, और स्टार्ट आपने करना बोला है, था right? कल मैम आपने कल मेरे को बोला था कि आप क्वेश्चन नंबर जो है ना वो ये वाला समझा दोगे मेरे को 12 वाला। अच्छा, नहीं आया था समझ 12th है, में। 12th बाकी रह गया है, ठीक है। चलो उर्सा मेजर, हाँ ये लोकेट कैसे करना है बेटा, उर्सा मेजर का डायग्राम कैसा है मुझे ये बताओ। मैम ग्रेट बेयर, उषा मेजर का डायग्राम Great ऐसे है Bear, मैम, तो ग्रेट बियर कल ही जैसा। बेटा कल ही दिखाया था अगर याद हो तो, है ना, बिग डीपर एकदम Ma'am, Big इजीली कैसे Dipper. ड्रॉ करेंगे, और उसकी नॉर्थ Yes, डायरेक्शन ma'am. अगर हम जाएंगे, ये देखो नॉर्मल से इसका एग्जांपल है, सपोज बिग डीपर ड्रॉ करना, बिग डीपर यानी जैसे सूप का चम्मच होता है वैसा, यहाँ पे दिख रहा है बेटा ये सूप का मैम चम्मच, कुल्हाड़ी जैसा। मैम मेरे को तो वो ट्रैक्टर जैसा लगता है, ट्रैक्टर से जो उठाते हैं। आप कुल्हाड़ी रखो, ट्रैक्टर रखो, जो भी रखो शाग्निक, ठीक है बेटा, उसको ज्यादा बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अच्छा अभी आपको स्क्रीन यहाँ पे शेयर नहीं की गई है ना, मुझे बता दिया करो बेटा, चलो मैं शेयर कर रही हूँ। No, ma'am. हाँ हाँ मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ बेटा। बिग डीपर के लिए सिंपल जैसे सूप का चम्मच होता है कुछ ऐसे, है ना, हमारे जो सूप का चम्मच होता है, वी आर गोइंग टू हैव, जैसे हमारे पास ट्रॉली होती है ना, जब भी हम मॉल वगैरह में जाते हैं कुछ ऐसे ही ट्रॉली होती है, बट वो सीधा यहाँ से होती है, ये थोड़ा लंबा हो रहा है, फाइन। तो अगर ये बिग डीपर का स्ट्रक्चर हम माने यहाँ पे, ये थोड़ा डीप होगा, बिग डीपर ही बोला है ना, तो ये डीप होगा। अब जितने भी यहाँ पे हमें कॉर्नर्स दिख रहे हैं वहां पे हम स्टार बना लेंगे, तो वो क्या बन जाएगी हमारी कॉन्स्टिलेशन। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, किसको लोकेट करना है हमें, तो हमें लोकेट करना है कौन से स्टार को, पोल स्टार को। पोल यानी कहाँ पे हो गए, पोल स्टार का मतलब ही क्या होता है, यहाँ पे एटलीस्ट आप 4 और 3 यानी 7 स्टार तो बताओगे ही बताओगे, ठीक है, 7 होने चाहिए, 7 से 8 हो सकते हैं बेटा, आपको सब पता है ना, बट फिर भी वो क्वेश्चन होता है, राइट। नॉर्मल सी बात है, यहाँ से जब एक इमेजिनरी लाइन या एक्सिस आप ड्रॉ करोगे, कौन से डायरेक्शन में होनी चाहिए, नॉर्थ, तो वहां पे हमारा कौन सा स्टार प्रेजेंट है, तो यहाँ पे लिख लो डायरेक्शन है, ये हो गई हमारे उर्सा मेजर, कॉन्स्टिलेशन का नाम लिख लो, मेंशन कर दो, ठीक है, ये हो गया डायग्राम। लोकेट करने के लिए डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी ही। अब ये जो 4 पोजीशन दिखाई है वो किसकी वजह से दिखाई है, ये 4 पोजीशन क्योंकि हमारा अर्थ रोटेट करता है, तो हर बार हमें उसकी पोजीशन ऐसे वेरी होते हुए मिल सकती है, सिंपल, ठीक है। बट फिर भी एक सेंट्रल पोल में, जैसे अभी पंखा घूम रहा है ना, तो पंखे के चारों साइड तो उसी तरीके से रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, कैन वी से दैट, कोई चेंजेस नहीं होगा, बट वहां पे सिर्फ अगर आप चारों उसके पंखे, तीनों पंखे पे अगर आप वो लगा दोगे कोई एक डॉट, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का और व्हाइट येलो कलर का, तो आपको पता चलेगा कि अभी कौन सा वाला घूम रहा है कौन से डायरेक्शन में, है ना, उसी के बेस पे, ठीक है साग्निक। चलो अब नया चैप्टर स्टार्ट करते बेटा। मैं लिखा हूँ Ma'am.
मैम मैं दिखाऊं? हाँ हाँ मीत, हाँ बोलो बेटा। मैम मैं दिखाऊं आपको? अरे हाँ हाँ मीत, रेडी करो बेटा जो भी पावर पॉइंट आपका, मैं आपको मैम मेरे को आ गया मैम समझ मैम में। रेडी ही है। स्टार्ट करेंगे मैम। हाँ बट आपको मैं शेयर करने के लिए बेटा परमिशन तो दूं। मेरे को आ गया समझ में मैम, थैंक यू। ओके मैम बेटा। हम स्टार्ट करेंगे मैम। सॉरी जय। मैम हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट हाँ करेंगे? हाँ वो डिस्कस करते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, इसका प्रेजेंटेशन एक बार देख ले। मैम हम क्विज खेले इस चैप्टर। नहीं प्लीज नहीं, आपकी एग्जाम है संडे को, तो उसके लिए अगर कोई डाउट है तो आई एम गोइंग टू गिव यू दैट टाइम। और अगर कोई भी डिस्कशन अभी भी 17 चैप्टर में समझ में नहीं आ रहा बेटा, सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट। जैनी, देन वी आर हैविंग वन मोर स्टूडेंट बेटा। जेरी, यू आर अटेंडिंग दिस क्लास फर्स्ट टाइम? नो मैम। ओके, नेस्वी, नेस्वी राइट? यस मैम। This is the first time beta that you are attending the class. नो। Okay, fine. Because I haven't noticed, है ना? Generally आपकी class. मैम बिकॉज मैं अपना वीडियो ऑफ फिर मैं पीडीएफ में सिलेक्ट करी हूँ क्योंकि स्कूल की बुक और ट्यूशन की बुक डिफरेंट है इसलिए। Okay, चलो ready? Meet. यस बाद में मैम। मुझे होस्ट बना देना है ना बाद में। ओके मैम। चलो। पता है प्रेजेंट कैसे करना है? टैब ओपन कर लो, शेयर स्क्रीन करो। मैम दिखा आपको? नहीं मैम मैंने यहाँ से प्रेजेंट कर दी। आप दिखा, आप दिखा, आप दिखा। ओके मैम। F5 कर दो बेटा, F5। अच्छा देखो, प्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीजें आएगी। प्रेजेंटेशन में पहले ये बहुत ही सही है, बट टॉपिक का जो कलर है ना बेटा वो चेंज कर लो सबसे पहले, ठीक है? ओके टॉपिक मैम। का क्या कलर क्या रखूं मैं? और वो वर्ड जो है वो भी बड़ा कर दो बेटा, और टॉपिक के सामने कुछ लिख लो। फिर नेक्स्ट करो, कॉन्स्टलेशंस एंड प्लैनेट्स। ओके मैम यही रखना है बेटा या स्टार्स एंड सोलर सिस्टम वाला रखना है? नहीं मैम, जो टॉपिक लिया है ना वो रखना है। अच्छा ठीक है, चलो देन we will learn about what are constellation। ठीक है रुक जाओ, ठीक है? फर्स्ट पेज ऐसे ही छोड़ दो। वेट 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 वेट, प्रेजेंट मत करो बेटा, मुझे देखने तो दो। Planets, what signs are used to represent this planet? अच्छा, लर्न अबाउट के बाद यहाँ पे कोई डिमार्केशन होना चाहिए बेटा, है ना? एनोटेशन करने दो तो जरा मुझे। हाँ मैम। जस्ट अ सेकेंड। हाँ अब यहाँ पे ये वाला देखो, ये जो पोर्शन है, टुडे वी विल लर्न अबाउट। अबाउट को अलग कर दो बेटा, है ना? अबाउट को अलग कर दो, या फिर क्या कर सकते हो आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिख दो। यहाँ पे इंट्रोडक्शन की जगह ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या है आपके प्रेजेंटेशन के, ठीक है? फिर यहाँ पे सीधा यही से स्टार्ट करो, व्हाट आर कॉन्स्टिलेशंस और व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिलेशंस, ठीक है? ओके। देन वी विल लर्न, फिर ये निकाल दो, व्हाट वी विल लर्न, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिलेशंस। वहीं पे कॉन्स्टिलेशन के साथ ही कॉमा करके लिख लो टाइप्स। ओके टाइप्स। मैम कौन सी वो जो पहला है ना टुडे वी विल लर्न, उसको निकाल दो और वाटर कॉन्सिलेशंस कॉमा टाइप्स। हाँ टाइप्स कर दो, या फिर सेकंड पॉइंट में जाने देना है तो टाइप्स एंड नंबर्स ऑफ कॉन्स्टिलेशन। अगर आप नंबर्स ऑफ कॉन्स्टिलेशन लेने वाले हो तो, है ना? उसमें से सारे नहीं पढ़ेंगे, 188 या जितने भी 88 जितने भी कॉन्स्टिलेशन है, ठीक है, वो सारे नहीं पढ़ने वाले, बट उसमें से जितने पढ़ेंगे वो, ठीक है, वो आपके ऊपर है अगर करना है तो। और थर्ड पार्ट है planets, what signs are used to represent this planets and their size। यानी इससे क्या मतलब है बेटा, एक तो planets, ठीक है मैम प्लैनेट्स क्या है? आपने जो वीडियो बताया था ना, कौन सी साइंस यूज की जाती है? हाँ हाँ हाँ, बट ये जो है ये इन्वर्टेड कॉमा फिर निकाल दो फिर, है ना? अब सब जगह पे निकाल देना, क्योंकि आप डायरेक्टली लिख रहे हो। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स करके आपने डबल डॉट कर दिए, या फिर ये नहीं करोगे तब भी चलेगा। व्हाट साइंस आर यूज्ड, साइंस वो निकाल दो बेटा, प्लैनेट्स एंड देयर,
ये साइज, उसके बारे में प्लैनेट्स ही लिख लो, प्लैनेट्स और अदर सेलेस्टियल अगर ऑब्जेक्ट लेने वाले हो तो वो, ठीक मैम है। ये साइंस वाला निकाल दूं? हाँ, मुझे ये बताओ कि आप बाकी के जो हमारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है वो लेने वाले हो? नहीं मैम, सिर्फ प्लैनेट्स क्या और उनकी साइज क्या है। सिर्फ साइज ही लेने वाले हो? तो हाँ यहाँ पर मैम। फिर प्लैनेट्स एंड देयर साइज, देयर साइजेस, ये निकालो बेटा, प्लैनेट्स क्या मैम? ये निकाल ही दो पूरा। पूरा ही निकाल दूं? हाँ, बेटा एक काम करो, अमित एक काम करो, आपका प्रेजेंटेशन मैम के साथ शेयर कर लो आज, मैम मैम एक ठीक है? आइडिया दूं? और मैम इस- और वो प्रेजेंटेशन बेटा आप मेरे साथ शेयर करवा लो मैम से, जो भी उसके अंदर करेक्शन होगा मैं करेक्शन करके आपको शेयर कर लूंगी, ठीक है? ओके मैम। क्योंकि यहाँ पे बेटा मैम, मैम, मैम हाँ, मैम हाँ, मैं एक हाँ, आइडिया दूं? उसको बोलो एक, बोलो बेटा। मैम उस स्लाइड शो में जाके क्या एनिमेशन में एक ऐसा एक फीचर है जो जैसे कि इसमें ऑब्जेक्टिव्स लिखा है, वो करेगा, तो वो जब स्लाइड शो होगा जो वो पेज का, तो स्टार्टिंग से ऑब्जेक्टिव कोई अलग थीम में आएगा, मतलब कि लेफ्ट से राइट राइट राइट। टू आएगा, वो वैसा होगा। प्रेजेंटेशन के लिए तो बहुत सारी चीजें है ना, उसके लिए तो हम पूरा लेक्चर ले सकते हैं कि आप कैसे बना सकते हो प्रेजेंटेशन। बट मीत बेटा हम ये सब एक बार आप मुझे होस्ट बनाओ अब पहले, ओके मैम। ये प्रेजेंटेशन आप मैम के साथ शेयर कर दो और उनको प्लीज इन्फॉर्म कर देना कि वो मुझे शेयर कर दे, है ना, ताकि करेक्शन करके मैं आपको शेयर कर दूंगी फिर से रिटर्न। ओके मैम, यस बेटा। मैम हमको भी परसों को है ना वो मैम चैप्टर नंबर 1 का एक प्रोजेक्ट मिल रहा प्रेजेंटेशन बनाने का, मैं भी मैम को शेयर कर दूं, अगर कुछ उसमें गलती होगी तो आप ठीक कर देना। ओके मीत, ओके मैम। मैम मैं अभी भेज देता हूँ मैम को। ठीक है आप भेज देना, बट इन्फॉर्म कर लेना कि प्लीज फॉरवर्ड दिस टू हविशा मैम, ओके मैम। राइट? और हाँ, अभी मुझे होस्ट बनाया नहीं बेटा? मैम बना दिया। Okay, wait, I can't see anything right now. मैम बना दिया आपको। ओके फाइन, चलो ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमें लेना है, मैम कोलन पेट्रोलियम। एक मिनट एक मिनट, वेट वेट वेट, कोलन पॉल्यूशन वाला। व्हाट आई वाज थिंकिंग बेटा, हम मेटल्स और नॉन मेटल्स भी ले सकते हैं, फाइन, मेटल्स और नॉन मेटल्स भी ले सकते हैं, और कोलन आई थिंक कोलन पेट्रोलियम ही ले लेते हैं, फाइन, ठीक है? और किसी के यहाँ पे कोई नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है बेटा? मेरा तो मैम कब से कोलन pollution पेट्रोलियम वाला फिर है। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, हाँ ओके, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हमने स्टार्ट किया था। मैम चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स। और कंजर्वेशन मैम ऑफ, हमारे यहाँ पे है ना वो वाला चैप्टर भी चल गया है मैम, फ्री फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर मेरा भी हो गया है, फिर फ्रिक्शन भी हो गया है मैम। फोर्थ नॉन मेटल्स एंड मेटल्स भी हो गया है, फिर हमको कोलन पेट्रोलियम चला रहे हैं। ठीक है। मैम कोल्जन पेट्रोलियम हमारे में खत्म हो गया है। अब क्योंकि हमने बहुत सारा फिजिक्स ले लिया है ऑलरेडी, अगर फिजिक्स ना लेना तो पहले हम कोल एंड पेट्रोलियम ले लेते हैं, फाइन, फिर हम फिजिक्स फ्रिक्शन लेते या, हैं ना सॉरी हम फिजिक्स लेते हैं ना मैम, वो वाला चैप्टर करते फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर, हाँ मैम बहुत पेट्रोलियम, बेटा कोल एंड पेट्रोलियम ले लेते हैं पहले। हाँ रुद्र बोलो। ओके मैम। मैम वही चैप्टर नंबर 11 का, चैप्टर नंबर 7। 7 कौन सा बेटा? कोल एंड पेट्रोलियम ना? मैम नहीं मैम, कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हाँ नेचर। कंजर्वेशन भी ले सकते हैं, बट क्योंकि पाइपलाइन में बहुत टाइम से कोल एंड पेट्रोलियम पड़ा है तो वो पहले ही ले लेते हैं, फिर कंजर्वेशन ले लेंगे, ताकि बीच में ये फिजिक्स जो हो रहा था बायोलॉजी, उसके बीच में हमें ये ब्रेक मिल जाएगी। दोनों चैप्टर वैसे ही है, ठीक है? ओके तो ये एनवायरमेंटल मैम। में जाता है दोनों का दोनों, ठीक है? एनवायरमेंटल की एक अलग ही कैटेगरी है, फाइन, तो यही दोनों लेते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम से स्टार्ट करते हैं बेटा, चलो। Ma'am, can you wait? फाइबर, यस बेटा, Can you wait? I'm downloading the PDF. ओके डोंट वरी, आई एम गोइंग टू शेयर इट, है ना? Okay. मैम मैंने साक्षी मैम को भेज दिया। ठीक है, बट आप बताना, ठीक है, कि मुझे शेयर करें। हाँ मैम मैंने ऐसा लिखा है, प्लीज सेंड फॉरवर्ड दिस पीपीटी टू हिमीशा मैम। ओके फाइन, ग्रेट। मैम पर इसमें ये चैट में अभी सेंड हो सकता है? हाँ हो
सकता है बिल्कुल। अगर लैपटॉप है वहां पे फाइल वाले ऑप्शन में क्लिक करो, वहां पे फाइल में से ब्राउज करो अपना जो भी डेटा है। उसका लैपटॉप ही है हाँ बिल्कुल तो सेंड कर सकता है इसमें। बिल्कुल कर सकता है। मैम भेज भी दिया आपको। हाँ मिल गया। मुझे याद दिला देना, ठीक है? ये करेक्शन नेक्स्ट टाइम जब भी हमें करना हो। ओके मैम। ओके डन। चलो कोल एंड पेट्रोलियम को एक पढ़ना स्टार्ट करो बेटा। मैं प्लीज मैम रुद्रा। अब प्लीज प्लीज रुक जाओ। कौन था बेटा ये? मंजर। हाँ मंजर स्टार्ट करो फिर जय। मैम कौन सा चैप्टर? 1 1 2 2 पैराग्राफ्स। ओके चलो स्टार्ट करो कोल एंड पेट्रोलियम से। मैम आप स्क्रीन शेयर करने वाले हो पीपीटी की? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल। आई विल। यू आर वेटिंग फॉर मी? आई थॉट यू आर हैविंग योर टेक्स्ट बुक बेटा। चलो स्टार्ट करो। Ma'am, me man. I have to. चलो बेटा स्टार्ट करो। Yes, ma'am. What are those two questions? Coal and petroleum. Why do we need to learn this chapter? What's the reason? बहुत ही clear example है उसके लिए। Why do we need to learn this chapter? First question. आप बताओ मुझे। Ma'am, because of coal and petroleum are used in day-to-day life. Yes, ma'am. Ma'am, these are used in various things like vehicles and in kitchen. And ma'am, they are not very important sources. Yes, Ma'am, ma'am. they are very यानी important काफी minerals. सारा ma'am. इंडस्ट्री, काफी सारा इंडस्ट्रियल पार्क या जो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, अभी तो हमारे पास कुछ और ऑप्शन नहीं है, इसी के ऊपर चल रही है, राइट? भले ही हमने बायोगैस प्लांट ढूंढ लिया हो या फिर हमारे पास बाकी के जो एनर्जी के रिसोर्सेस है, विंड है, वाटर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, बट फिर भी अभी सबसे ज्यादा कॉमन यूज हम किसका कर रहे हैं? पेट्रोलियम, कोल। Coal and petroleum. नेसेसिटी है जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होती है। कोई भी आप बड़े से बड़े एनर्जी कन्वर्जन या फिर कोई प्रोडक्शन के लिए ले लो, ठीक है? तो ये रॉ मटेरियल है। आगे आगे हम देखेंगे कि वो पहले तो है क्या और हमें कहाँ से मिलते हैं, राइट? सो दैट पार्ट, व्हीकल्स अगर आज हम चला पा रहे हैं, राइट? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ओके? देयर आर नॉट ओनली वी आर गोइंग टू सी so many examples that we are getting from this petroleum, है ना? But still we are having one common or important usage, that is जो आपने बोला ना डे टू डे लाइफ में जो हम हर रोज व्हीकल यूज करते हैं, कोलसा। Cooking में भी तो यूज होता है जब villages में। That what exactly it is? सेकेंड पार्ट है कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, राइट? तो हमारे यहाँ पे कोई पार्ट नहीं है एक्चुअली, ये थियोरी है। थियोरी कैसी थियोरी? ऐसा माना जाता है कि कैसे कोल और पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है, ठीक है? और वो आगे कहाँ और कैसे यूज होता है, फाइन? बस क्वेश्चन के बेस पे है, अदरवाइज आप बोल सकते हो कोल एंड पेट्रोलियम दोनों का पार्ट है ना, कैसे And the byproducts of the petroleum like kerosene, diesel and petrol are very. यस बेटा चलो पढ़ना स्टार्ट करो मंजर। Yes, ma'am. Chapter number 5, we use various materials of our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. Can air, water and soil be created by a human activity? You have already studied about water in class 7. Is water a limitless resource? Yes बेटा व्हाट हैपेंड? मैम स्क्रीन नीचे स्क्रॉल डाउन हो रही है। अच्छा आप इसमें से पढ़ रहे हो? आई थॉट कि यू आर यूजिंग योर टेक्स्ट बुक बेटा। ओके फाइन गो अहेड। Yes, ma'am. In the light of the availability of various natural resources can be broadly classified into two kinds:
Inexhaustible natural resource. Exhaustible and inexhaustible natural resources. ना exhaustible यानी कैसे? मैम जो भी Limited है in मतलब मैम जो कभी कभी और मतलब नॉन रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल से ज्यादा भी exhaustible यानी एक बार खत्म हो गए तो we cannot bring it back. Exhaustible limited amount में Be चलो check exhausted. करो. Ma'am, they cannot be exhausted. म्यूट Yes. करो बेटा. एंड मैम इनएग्जॉस्टेड मतलब जैसे कि है ना जो लोकल में मिलते हैं. ठीक है, ये जो आंसर बता दिया बेटा आपने वही सही है ना? मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है. फाइन, चलो नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं बेटा. इट्स ऑलरेडी 20 मिनट्स, सो वैसे भी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे अभी. हाँ जैनी बोलो बेटा, कोई क्वेश्चन है जैनी? Ma'am, No, ma'am, because I'm doing resign for reading. ma'am, यस मैम मी टू. सॉरी बेटा, कौन है ये? प्लीज म्यूट करो अपने आप को, वरना मैं सबको म्यूट कर लूंगी. हाँ म्यूट करो. कौन है ये? थैंक यू सो मच. हाँ जैनी, अब सिर्फ आप अनम्यूट करो. क्या मैम? Ma'am, because क्या to क्वेश्चन है आपका read. क्या मैम? बेटा? जैनी. Ma'am, because to read, that's why I'm raising my ओके hand. फाइन नेक्स्ट टाइम. ओके हाँ, एक बात है, संडे के एग्जाम में 17 चैप्टर. फाइन, चलो कंटिन्यू करते हैं बेटा बाद में. फाइन, ma'am, प्लीज टेक केयर. बाय. बाय मैम. Bye, ma'am. बाय मैम. ma'am, सागरिका मेकिंग का होस्ट है. मैम ओके मैम. संडे की टेस्ट में कितने चैप्टर आने वाले हैं? मैम चैप्टर अभी हमने 17 रखा है. मैम ओके मैम. पूरा बोलो बेटा, थैंक यू मैम. बोलो. बाय मैम. एक बार. बाय मैम. बाय मैम. Bye, ma'am. ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, मैम काइट,
ठीक है, सो सबको सारी प्रॉपर्टीज याद हो गई, मैंने कहा था यस मैम, यस मैम, सारी प्रॉपर्टीज याद करके हाँ आया मैम। मैम। मैम बस ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है वो मैम पूछेंगे, एक ही बात है। मतलब उसका। चलो मैम ठीक है, चलो अभी पता चलेगा, अभी मैं सम्स जब एक्सरसाइज के करवाऊंगी हाँ तो मैं प्रॉपर्टी पूछूं तो मेरे को बताना, जिसको मैं बोलूं जिसे आता है वो हैंड रेस करेगा, बाकी के लोग सीधा जिसको मैं पूछूं मैम वही। पहले से हैंड मैम हाँ मैम मेरा नेटवर्क बैंडविड्थ लो दिखा रहा है, मैं अपना वीडियो ऑफ रखूं? हाँ ठीक है बेटा, मैंने बोल तो दिया, कितनी बार बोलूं। मैम मैंने भी अपना ऑफ ही रखा है, इसलिए मैम मेरा वो लो है ना। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, एक्सरसाइज 3.3। ओके मैम। एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट सब देखेंगे ना। फर्स्ट सब में तुमको कुछ प्रॉपर्टीज से ही बताने को बोला है। दे हैव आस्क्ड गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट द स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड। तो एक पैरेललोग्राम दिया है ABCD, मैं बना देती हूँ पैरेललोग्राम, और बस ये सारे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, अब जिसको पूछूं वो आंसर देगा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज। ओके, फर्स्ट पूछा है AD इक्वल्स टू, AD कौन से साइड के इक्वल होगा, हैंड रेज करना है। AD कौन से साइड के इक्वल होगा, जिसे आता है वो हैंड रेज करोगे, जिसे आता है, जिसने हैंड रेज नहीं करा होगा ना उसको मैं क्वेश्चन पूछूंगी ये क्यों नहीं आता है। जिसे आता है वो हैंड रेज करो, जिसे पता है AD विल बी इक्वल्स टू व्हाट, और जिसका हैंड रेज नहीं है उनको मेरे को आंसर देना होगा कि क्यों नहीं आता है। जेनी, नेस्वी गज्जर, रोहित, आशी, देवम, कनिष्का, धार्मिक, मानव, मंजा। लक ही खराब है। मैम मैंने तो आपको रीजन हैंड रेज करने को बोला है, मैम मैंने तो आपको रीजन हैंड रेज करने को बोला है मैंने, कैमरा ऑन करने को नहीं बोला है। जिसे इसका आंसर आता है उनको हैंड रेज करना है। AD will be equals to which side? मेरे को आंसर लिखेगा नहीं बेटा, कोई भी आंसर मत लिखो क्योंकि वो अभी मैंने होस्ट, हाँ होस्ट ओनली है। ओके, जेनी, रोहित, जेनी तुम्हें नहीं आता है? नो मैम, मैम आपकी आवाज बीच में जा रही है। बेटा तुमको ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है? मैम नहीं आ रहा। नहीं आता है। प्रॉपर्टीज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? नो मैम। क्यों नहीं पढ़ी? आशी, हाँ बेटा कैमरा ऑन करो। नेटवर्क इशू है, इसका आंसर बताओ मुझे आशी। Ma'am, I'm not sure about my answer, but Ma'am, I'm not sure about my answer, but क्या बोल रही है? Ma'am, I am not sure about my answer. मैं जब पूछूंगी तब हम श्योर देख लेंगे। तो यू जस्ट रेज योर हैंड, दैट्स इट। अगर तुम्हें कोई भी आंसर आता है, लगता है कि ये आंसर है, तो रेज योर हैंड। Ma'am, BC. देवम, देवम, हाँ बेटा देवम, क्या दिक्कत है बेटा, क्यों नहीं आ रहा है? May I? मंजार बोलो, आंसर बोलो मंजार।
मंजर आंसर बोलो. मैम AD will be equal to मंजर. मैम May I? बेटा प्लीज कोई और मत बोलो. मैम मैं बोल रही हूँ. तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मेरे को. हेलो हाँ बोलो. मैम डी. रीजन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? क्या मैम? प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई? आपकी आवाज. मंजर प्रॉपर्टी कौन सी हुई है? May I? रुद्र. रुद्र A591. A591. हाँ. Opposite sides of parallelogram are equal. Very good. Opposite sides of parallelogram are equal. Okay. So AD will be equal to BC. Because opposite sides of parallelogram are same. Next question में angle DCB किसके इक्वल होगा वो बताना है. DCB यानी ये किसके इक्वल होगा हमें वो बताना है. सो अगेन काव्या DCB किसके इक्वल होगा? मैम DAB. वेरी गुड. DAB और प्रॉपर्टी. Opposite angles equal. Yes, opposite angles of parallelogram are equal. Very good. Third, OC equals to OC यानी ये OC equals to कथन. Ma'am, OC is equal to OA. Diagonals bisect each other. हाँ, OC equals to OA. Very good. और उसका प्रॉपर्टी क्या आएगा? Diagonals bisect each other. Very good. Diagonals bisect each other. फिर ये वाला मैं बोलूं? DAB CDA. Angle DAB plus CDA equals to क्या आएगा? मैम may I? साथ में. यस मैम. मैम इसमें आएगा 180 डिग्री क्योंकि मैम जब भी मैम दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है तो 180 डिग्री होता है. ये सप्लीमेंट्री एंगल से ऐसा कहा दिया है? Ma'am, these are adjacent angle. ये मैम एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होता है. सप्लीमेंट्री एंगल मतलब ये एंगल और CDA मतलब ये एंगल हुआ. तो ये दोनों नेबर्स हुए, एडजेसेंट एंगल्स है ये दोनों. तो एडजेसेंट एंगल्स का सम पैरेललोग्राम में सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट सम है. उसके अंदर जितने भी सम थे सारे इंपॉर्टेंट है. सो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, कंसीडर द पैरेललोग्राम Now next बोला है consider the parallelogram, find the degree values of x, y, z. Ma'am, we also have to draw this figure in our notebook. Draw figure in every sum. Okay, ma'am. ये पैरेललोग्राम ही है और तुम्हें x, y, z सबकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो पैरेललोग्राम सबसे पहले देखो, इधर हमने प्रॉपर्टीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, साइड्स, डायगोनल्स, एंगल्स. यहाँ पे तुमको एंगल दिया है और एंगल्स ही फाइंड करना है, तो सिर्फ एंगल्स की प्रॉपर्टी देखेंगे. तो एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है पैरेललोग्राम में? 2 ही होती है, अपोजिट Angles are equal. और मैम एडजेसेंट एंगल आर 180 डिग्री. Very good. Opposite angles are equal and adjacent angles are supplementary.
So the same property we will use. ABCD is the parallelogram. Therefore, angle A equals to angle C. Angle B equals to angle D. क्या लिखोगे? Opposite angles are equal. हम तो उनकी वैल्यू ठीक है, अब देखो बताए अभी B यहाँ पे एंगल B की वैल्यू है 100 तो D की भी ऑपोजिट एंगल 100 तो y इक्वल टू हो गया 100 ये 100 के ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल तो ये भी 100 और फिर होते हैं एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री तो तुम लिख सकते हो 100 प्लस z भी लिख सकते हो 100 प्लस x भी लिख सकते हो जो तुम्हें लिखना क्योंकि 100 का एडजेसेंट एंगल z भी है और x भी है दोनों है तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो तो if I write x और रीजन लिखना है किसी का अगर रीजन नहीं लिखा ना तो सबके हर स्टेप में 1 मार्क का अगर स्टेप होगा तो आधा मार्क मिलेगा कट जाएंगे अगर रीजन नहीं लिखा X and Z is 80 degree. adjacent angles are supplementary 180 degree so x equals to 80 degree और 80 और z ये हुआ opposite angles opposite angles equals to opposite angles एक सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 और 4 अभी करो खुद 3 मैं करवा रही हूँ एक सेकंड में लिख ले मैम बोर्ड थोड़ा मैम डाल degrees of x, y and z. Again, this is a parallelogram. यहाँ naming नहीं दिए तो तुम दे दो. You give like this. Okay. Now opposite angles equal होते हैं इसमें बेटा देखो x और y equal होगा 50 इधर है तो यहाँ पर एक एंगल 1 है ये वाला क्या होगा 50 so you can write angle B equals to angle D और reason लिखेंगे opposite angles okay ये हो गया so therefore angle B equals to 50 बट हमको फाइंड नहीं करना था हमने वो फाइंड किया ताकि हमको z मिल जाए और x भी मिल जाए ठीक है तो अब देखो ये एडजेसेंट एंगल्स हो गए तो x plus 50 equals to 180 180 so x equals to 130 मैम y also 130 very good y also 130 opposite and ma'am z is equal to 130 also z is equal to 130 z फाइंड करने के बहुत तुम लीनियर वेरिएशन you can take that you can take alternate angle also phi और z वो भी इक्वल होगा ये साइड में alternate interior angle होता है वो भी सेम ही आएगा तुमको जो मेथड यूज करनी है कर सकते हो ये और ये भी इक्वल होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्योंकि ये सब लाइंस तो पैरेलल ही है ना तो पैरेलल है तो जब भी पैरेलल लाइंस है मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट ये सब यूज कर सकते हो ठीक है तो तुमको जो भी यूज करना है आई थिंक तुम लोग को लीनियर पेरी सबसे ज्यादा इजी लगेगा हाँ मैम लीनियर पेयर ही किया है मैंने हाँ मैम लीनियर पेयर ही किया है मैंने भी हाँ बट मैंने बताया ये चीज भी ध्यान रखना कि तुमको अगर कभी ये ना दिया हो ये दिया तो यहाँ से भी डायरेक्टली ये दोनों सेम होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एक्सिस
क्वेश्चन नंबर थर्ड fourth. फोर्थ उसके बाद 4 का क्वेश्चन नंबर 3. मैम 4 मैम आपका वॉइस में y कट 80 हो रहा डिग्री है. होगा. क्या हो गया? मेरा वॉइस नहीं आ रहा क्या प्रॉपर्ली? नहीं मैम मेरे को तो बराबर आ रहा है. मैम मेरे को बराबर आ रहा है. बस तो फिर चलो. मैम y मैम 80 डिग्री मैम होगा. क्वेश्चन नंबर opposite 3 मैं angle. करवाऊं? मैम क्वेश्चन नंबर 3 मैं करवाऊं? हाँ मैम. तो उसमें x वो x होगा ना, वो x वो मैम x 90 डिग्री होगा क्योंकि x के एग्जैक्ट ऑपोजिट में 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री. हाँ मैम. मैम अब बोलूं? हाँ बोलो. मैम x होगा ना, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट 90 है, तो x भी 90 डिग्री होगा. यस. देखो बेटा ये 90 डिग्री का सिंबल होता है. मैम मतलब वो 90 डिग्री है. तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल. इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल. Opposite angle. मैम फिर मैम उसमें x हो गया 90 डिग्री, तो x प्लस 30 प्लस मैम y x इज plus इक्वल टू 30 is equal 180 to डिग्री होगा. मैम मैम तो फिर 180 minus 30 होगा. एक ही जन बोलेगा बेटा. मेरे को एक साथ 3-4 लोग नहीं चाहिए. मैम मैं बोल रहा था, मैं बोल रहा था. हाँ बोल. फिर मैम x का 90 हो गया ना, मैम तो मैं x अपना वीडियो बंद रख सकती हूँ? मेरा नेटवर्क इश्यू है तो सब तक मैं मीटिंग से बाहर जा रही हूँ. बेटा प्लीज मीटिंग के बीच में ये सब चीजें डिस्टर्ब नहीं करनी है. तुमको करना है तो तुम कर लो. बट जब चल रहा हो, कोई कुछ एक्सप्लेन करना हो, तो बीच में ये सब पूछना है कि मैं रीजॉइन हो जाऊं, मैं ये कर दूं. यू हैव टू वेट. मैम आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है. यस बोलो. हाँ मैम. मैम वो x 90 डिग्री हो गया ना, तो 90 प्लस 30 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री. वो भी बताओ बेटा कि हम एक ट्रायंगल में लगा रहे हैं. कौन सा ट्रायंगल? मैम इक्विलैटरल ट्रायंगल. सॉरी मैम, मैम equilateral. नाम बताना. Right angled. राइट एंगल ट्रायंगल. बेटा ट्रायंगल का नाम बताओ. नाम ABC. मैम AOD. AOD मैम. एक बेटा तुम्हारा आउटपुट बहुत ज्यादा है, उसको कम करो थोड़ा. वॉइस मैम ट्रायंगल AOD होगा तो उसमें 90 प्लस 30 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री. इन ट्रायंगल AOD हम लोग ऑलरेडी बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं. और ट्रायंगल की और क्वाड्रिलेटरल की तो याद ही रखनी है. ट्रायंगल में सारे एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री. और आपने पहले भी लिखवा था कि कोई भी 90 पॉलीगॉन है plus उसका 30 एक्सीडियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा. So x plus y plus 30 degree equals to 180 degree. That is angle sum property. That is angle sum ASP. That is angle sum property. मैम z का मैं बता सकता हूँ. एक मिनट बेटा. एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से हट जाती हूँ. तुम स्टार्ट कर दो व्हाइट बोर्ड लेके पढ़ाना. ठीक है? तो x की वैल्यू 90 पुट करेंगे. y plus 30 equals to 180. फिर मैम 120 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री. फिर y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री. तो आंसर आएगा 60 डिग्री. तो मैम y 60 डिग्री हो गया. ऐसे हम AOD का हमने वैल्यू फाइंड कर दी. मैम मैं z का बता सकता हूँ. मैम कैन आई से z? COB. हमको करना है z. रुक जाओ बेटा, जो बोल रहा है उसको कंप्लीट करना है. तो यस मैम. क्या मैम z का? हाँ मैम z की भी फाइंड की है मैंने. तो z में हम AOC ऐसे करके लेंगे और 60 प्लस 90 प्लस z ऐसा लेंगे.
क्यों मैम ऑल्टरनेट भी ले सकते हैं, ऑल्टरनेट मैम डायगोनल वाई एंगल, वाई में मैम इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल होगा। कोई नहीं बोलेगा, सब लोग बोलो, यश के अलावा कोई नहीं बोलेगा। मैम डायगोनल लेंगे हम। हाँ, बोलो क्या 60 प्लस 90 प्लस क्या बोले तुम, Z 180 क्यों? मैम डायगोनल लेंगे ना इसीलिए। हाँ डायगोनल तो लिया, फिर डायगोनल का क्या कर रहे हो तुम, मेरे को वो बताओ। मैम उसमें 16 प्लस 90 प्लस Z किया, फिर उसमें 150 आया। प्रॉपर्टी है 60 प्लस 90 प्लस Z, कौन सी प्रॉपर्टी है? मैम वो नहीं याद है। रख दो, उसको चाहिए कि अभी चाहिए? मैम मे आई से मैम मैं कुछ बोल सकता हूँ मैम? जय सारी बुक मैं बोलूँ मैम साग्निक? हाँ बोलो बेटा। और मैम जो मैम वो सिंबल दिया है मैम 90 डिग्री का मैम, तो फिर मैम वो मैम क्या वो एडजेसेंट एंगल्स है सप्लीमेंट्री करके मैम कर सकते हैं ना? मैम हम लोग ले सकते हैं कि जो 60 डिग्री है ना मैम, वो Z से ऑल्टरनेट एंगल है मैम, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। एक्सपेरिमेंट करना तो एक्सपेरिमेंट आंसर दिया, और क्या आंसर में यही क्यों देंगे? हाँ क्या बोले यश, तुम्हारा खत्म हो गया, तुमने को बताया नहीं रीजन? मैम मुझे नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ मैम, मैं बोल सकता हूँ साग्निक। बोलो तीन। Z is 60 degree because alternate angles are equal. हाँ तीन बोलो बेटा। Ma'am, Z is 60 degree because interior alternate angles are equal. Yes. Alternate interior angles कहाँ बनेंगे? अब देखो सब लोग इधर, look everybody here. ABCD क्या है? ABCD parallelogram है। क्या दिया है? ABCD parallelogram. Okay, so see, जब भी parallelogram हो, ये जो मैं प्रॉपर्टी बता रही हूँ वो सब में लगेगी, पैरेललोग्राम में भी लगेगी, स्क्वायर में लगेगी, रेक्टेंगल में लगेगी, राउंडस में भी लगेगी, चारों में लगेगी। जब उसका डायगोनल होता है ना ऐसे, तो ये एंगल और इसका ऑल्टरनेट यानी ये एंगल इक्वल होता है, ठीक है? सेम ये एंगल और इस साइड ये एंगल इक्वल होता है, तो यानी कि ये 60 डिग्री है, ये डायगोनल है ना, दिस इज डायगोनल, ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री होगा Z। उसका रीजन लिखोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हमेशा ये ध्यान रखना, तुमको अगर कभी भी ये एंगल दे दिया तो ये भी यही होगा, सेम एंगल। ओके ओके मैम। नेक्स्ट इज कंटिन्यूम, डायग्राम दे रखा है, बढ़िया फोर्थ वाला कर दिया तुम लोगों ने? यस मैम कर लिया फोर्थ वाला मैम, कर दिया मैम फोर्थ वाला। मैम फोर्थ वाला प्लीज मैं बता सकता हूँ मैम, साग्निक प्लीज। हाँ बता दो चलो। हाँ मैम, हाँ मैम। बोलो सब नाम दे रहे थे, let's take some another name this time. Yes ma'am. You are Yes ma'am, may I? हाँ बोलो। Ma'am, y is equal to 80 degree because it is opposite angle. Very good. Opposite angle to it. Yes ma'am. And ma'am, z is equal to 80 degree. Z is equal to 80 degree because alternate angle to y. No ma'am, 130. Ma'am, adjacent. Ma'am, 130 degree.
80 आएगा मैम, 80 डिग्री आएगा Z। रीजन क्या लिखोगे? एडजेसेंट एंगल। मैम linear pair of angles linear linear pair of pair of angles. angles मैम alternate angle। एक्सटीरियर एंगल सेम साइड ट्रांसवर्सल। पहले ठीक है, ऑल्टरनेट सेम साइड पे होता ही नहीं, तो सेम साइड पे 80 और Z एक ही वॉल के साइड पे। मैम इट्स मैं linear 80 और Z की नहीं बात कर रहा मैम, Y और Z की बात कर रहा हूँ। अगर Y इज इक्वल टू 80 तो मैम Y 80 हो गया, तो मैं Y से Z ऐसे बोल रहा हूँ मैम। तो तुमने क्या बोला? Z इक्वल्स टू 80 ऑल्टरनेट बोला है, Z इक्वल्स टू 80 नहीं, Z की वैल्यू 80 राइट है, रीजन गलत है। यू राइट। रीजन ऐसा होगा कि ना, क्योंकि Y जो है वो Z के ऑल्टरनेट एंगल है। हाँ वो मुझे पता है, यहाँ से तो फिर पहले यहाँ जाओ फिर यहाँ जाओ, डायरेक्टली यहाँ मत कूदो। पहले फिर तुम इसको y equals to 80 इधर 80, then you write y and z, don't write z and 80 then। और अगर z and 80 को इक्वल करना है तो रीजन लिखो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ये दोनों। देखो कॉरेस्पॉन्डिंग है दोनों। यस मैम। ठीक है, और दूसरा भी देखो, यहाँ पे ये 80 है तो 80 और z ये ऑल्टरनेट हुए, दिस इज ऑल्टरनेट एंगल, वो लिखो। और x मैम x plus 80 कर सकते हो, वो भी कर। एडजेसेंट एंगल मैम। मैम 180 minus 80 is equal to 100। 180 मैम इज इक्वल टू मैम 80 होगा, वो भी 100 minus 80 80 होता है। इधर भी लिखना है एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री पूरा। मैम आंसर 100 आएगा। हाँ मैम 100 करेक्ट। मैम फिफ्थ वाला मैम आप करा रहे हो? हाँ फिफ्थ में करा रही हूँ। हम 1 मिनट मैम ड्रॉ कर ले। पहले खुद ट्राई करो फिफ्थ वाला। ओके मैम। सब लोग खुद ट्राई करो फिफ्थ क्वेश्चन। मेरा भी हो गया है मैम, बहुत इजी था वो वाला। हाँ मैम। इतना इजी था। मैम मैं बताऊं? मैम मैं बताऊं उसका आंसर? मैं बताऊं? बिल्कुल म्यूट हो जाओ सब लोग। यस मैम। फिर मैम Z की x और z सेम होगा, x और z की वैल्यू क्या होगी? सेम मैम 40 क्यों x की ऑपोजिट एंगल है इसीलिए, और Z की वो ऑपोजिट साइड है इसीलिए। ये 112 ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है बेटा, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इसके लिए। तो अब देखो 112 x और 40, 112 plus x plus 40 equals to 180। 28 मैम। 28 डिग्री मैम। 28 डिग्री। तो x 28 हो गया और यहाँ पे z 28 हो गया। मैम व्हाट अ कोइंसिडेंस, अभी 628 ही हुए हैं। 28 क्या लिखोगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यस मैम। हाँ मैम डन। मैम अभी समझ नहीं आया मैम। A 40 होगा तो फिर मैम x भी तो 40 होना चाहिए ना? क्यों बेटा, क्यों 40 होना चाहिए? नहीं ऑपोजिट एंगल है इसीलिए। मैम वो तब होता ना जब मैम पूरी तरीके से होता, वो तो बीच में डायगोनल आ गया। Speaking to someone you have to keep quiet। हाँ मैम पता चल गया। जब ये इतना ये आधा ही एंगल है बेटा, 40 पूरा एंगल नहीं है, पूरा एंगल होता तो ये पूरा 40 होता है, तो आधा एंगल दे रखा है 40, तो दूसरा हाफ हमको फाइंड करना है। हाँ मैम पता चल गया। मैम मैंने भी वैसा ही किया था, आधे को पूरा ले लिया और फिर मैंने। ठीक है चलो ओके डन। अब